Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Asoka, the emperor who gave up war. And under this chapter we have discussed about the Mauryan Empire, the administration of the empire, about the capital cities and the provincial cities, how they were administered. And we have also discussed about Asoka. What was the uniqueness of Asoka? Why Asoka is known as a unique ruler? And besides, we have also discussed about the Kalinga War, how important the war was, and what was the impact of the war. The impact of the war, because of bloodshed and violence, it was decided by Asoka that he will give up conquering. He will give up war. He was a king and he was an emperor. He was the king of such a large empire, such a big empire, Mauryan Empire. And he decided not to fight war. That decision was taken at that time when he conquered Kalinga. He won the battle of Kalinga. He won the war of Kalinga. Still, he decided not to fight again in the whole life. He decided to give up war for the whole of the life. Why this decision was taken by Asoka? Because Asoka was he was very much disturbed by the level of violence, the scale of violence which he experienced during the Kalinga War. So many people died. The bloodshed, the violence, all this has a very devastating impact on Asoka, and he chosen the path of Dhamma. Instead of the path of conquering, he chosen the path of Dhamma, and this is known as Asoka's Dhamma. After that Kalinga War, he gave up war and he started spreading his Dhamma. And as I told you in the previous class, that Dhamma is प्राकृत वर्ड फॉर धर्म, जिसको हम हिंदी में धर्म कहते हैं. दैट इज नोन एज धम्मा in this Prakrit language. So Asoka followed the path of Dhamma, and in this Dhamma, in Asoka's Dhamma, there was no worship of idol, है ना. किसी भी तरह के गॉड की पूजा नहीं होती थी. इट वॉज नॉट अबाउट वर्शिपिंग द गॉड. मोस्टली हम क्या देखते हैं, जो भी रिलीजन होता है उस रिलीजन में एक गॉड होता है और उस गॉड को हम की पूजा करते हैं. बट इन दिस रिलीजन धम्मा जो इन्होंने अपना दिया वो बहुत ज़्यादा गौतम बुद्धा के टीचिंग से इंस्पायर्ड था. इट वॉज वेरी मच Asoka was very much inspired by the teachings of बुद्धा. बुद्धिज़्म की टीचिंग्स, बुद्धिज़्म के जो भी प्रिंसिपल्स थे उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. एंड इनका भी धम्मा बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है, जिसमें किसी भी भगवान की पूजा नहीं की जाती है. किसी तरह का कोई सैक्रिफाइस, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स लोग करते हैं उस समय, खास करके जो हम देखते हैं जो वैदिक रिलीजन था उसमें जो लोग करते थे पूजा पाठ और रिचुअल्स करते थे, सैक्रिफाइस करते थे, वैसा कोई भी कुछ भी नहीं था इसके अंदर, धम्मा के अंदर. एंड अशोका वॉज ऑफ द ओपिनियन कि जैसे एक फादर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और बच्चों की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अब वो समय था, उस समय फादर को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था. हालांकि दोनों पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, बच्चों की अपब्रिंगिंग, बच्चों को अच्छे से पालना पोसना, उनके अंदर समझदारी लाना, उनका हर तरह से डेवलपमेंट के लिए बोथ द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. बट ये एंशिएंट टाइम की बात हो रही है और उसमें थोड़ा फादर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता था. तो अशोका अपने आप को फादर मान रहे हैं, और जो उनकी जिस सब्जेक्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट. Now I would like to relate this subject with जब हमने सिविक्स पढ़ा था चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डू यू रिमेंबर. उसमें भी ये टर्म आया था ना, सब्जेक्ट, जिसमें कि
जब समीर एक और समीर दो दे वर टॉकिंग टू ईच अदर एंड when समीर एक started speaking in Hindi, तो समीर दो was very much surprised कि how this boy is able to speak in Hindi, because he was of the opinion that a boy like Sameer Ek will not be able to speak in Hindi. And at that time Sameer Ek told him, समीर दो को उसने बताया कि हिंदी इज वन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, है ना, हिंदी को वो स्कूल में पढ़ते हैं, वो उनका एक सब्जेक्ट है, तो कैसे वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, दे विल बी एबल टू स्पीक हिंदी, है ना। ऐसी चीजें हमने देखी थी। अब वही चीज क्या है, वही चीज हम क्या देख रहे हैं कि तो फिर तो उसे नहीं पता चला, समीर दो जो था उसको ये नहीं समझ में आया कि सब्जेक्ट से क्या मीन करते हैं, वो सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। उसने पूछा सब्जेक्ट क्या होता है, और तब समीर एक ने क्या कहा था कि जो समीर दो के मुंह से जो सब्जेक्ट वर्ड निकला, इंग्लिश वर्ड, बिकॉज ही वॉज टोटली इलिटरेट, है ना, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, ही यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर, यू रिमेम्बर वेरी वेल, है ना, हम लोग ये स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो वो कभी भी इंग्लिश वर्ड्स नहीं बोलता था, हिंदी में ही बोलता था पूरी की पूरी। तो यहाँ पर जब उसने सब्जेक्ट कहा तो यू रिमेम्बर समीर एक ने क्या कहा था, समीर एक ने कहा कि जब उसके मुंह से सब्जेक्ट सुन के वो सब्जेक्ट हिंदी वाला सब्जेक्ट से ज्यादा ये सब्जेक्ट जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट की याद आ रही है। तो ये सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, जब हम कह रहे हैं कि अशोका कंसिडर्ड हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रेन, है ना, तो ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसके लिए जो हिंदी में वर्ड होता है दैट इज नोन एज प्रजा। ठीक है, प्रजा का मतलब क्या होता है, देखो प्रजा का मतलब होता है जिन पे हम रूल करते हैं, जिन पे हम रूल करते हैं, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं। राजा, एक राजा होता है ना, एक राजा होता है और दूसरा प्रजा होती है। राजा सिंगल पर्सन इज अ किंग, और प्रजा जो होती है वो बहुत बड़ी सी प्रजा होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रजा है वो सब्जेक्ट हो गया और राजा जो है वो किंग हो गया। तो देखो प्रजा जो होती है ना उसका अपना कोई व्यू नहीं होता है। राजा, हमने मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच का डिफरेंस भी देखा है ना। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्किकल सिस्टम जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अशोका का रूल है, मौर्यन एम्पायर है, एवरीथिंग इज मोनार्की ओनली, है ना, द किंग इज रूलिंग। तो यहाँ पर राजा जो कहता है वही रूल बन जाता है। प्रजा को कोई हक नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी राइट जिसको वो क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए वो लड़ सकते हैं। राजा की मर्जी है, आपको राइट देंगे, राजा की मर्जी होगी, आपको राइट नहीं देंगे, है ना। तो ये होती है प्रजा। और आज के समय में जिस डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, हम प्रजा नहीं है, वी आर नॉट प्रजा, वी आर नॉट सब्जेक्ट, वी आर द पीपल, वी आर, इसको हिंदी में जनता कहते हैं, वी आर द people, we are the citizens, है ना। तो इसको इसी को हम कहते हैं जनता। जनता जब कहते हैं तो जनता के पास अधिकार होते हैं, प्रजा के पास अधिकार नहीं होते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी में जनता होती है, और जब हम मोनार्की की बात करते हैं तो वहां पे प्रजा होती है जिसको कि सब्जेक्ट कहा जाता है, कि उस सब्जेक्ट को वो किसी भी तरह से अपने हिसाब से उसको रूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को मैंने समझाया है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी अगेन इन द ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो अगर नहीं समझ में आता तो हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास में, यू आस्क मी, ओके। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, अशोका की धम्मा। तो धम्मा में जो अशोका कह रहे हैं कि ही कंसिडर हिमसेल्फ एज फादर फिगर। जैसे घर में जो फादर होते हैं, फादर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रेन, है ना। जो भी बच्चे घर में होते हैं उनकी जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फादर पे होती है। तो उसी तरह से जो कंट्री है, जो किंगडम है, जो एम्पायर है, उसमें अशोका अपने आप को फादर फिगर समझ रहे हैं, और जो सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो उसकी जनता प्रजा है, दे आर देयर चिल्ड्रेन।
अब उनकी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे है, वो इन्हीं पर है, अशोका पर है ना। और इसीलिए वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस लिखा उन्होंने, जो भी उनके whatever his views, whatever his teachings, all were inscribed on the stone pillars, है ना। जो मैप है इसमें हम लोग अभी उसको भी कंसिडर करेंगे, पहले इनके टीचिंग्स को समझ लेते हैं, फिर मैप्स पर कंसिडर करेंगे कि अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस है वो पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी इंडिया के पाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो अशोका का धम्मा है उसमें और भी बातें हैं, जैसे कि उस समय का जो सोसाइटी था, सोसाइटी के अंदर क्या था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। पीपल वर नॉट लिविंग इन पीसफुल मैनर, देयर वर कॉन्फ्लिक्ट among the people. Why? Because people belonging to different religion were living together, and this diversity of religion was the most important cause of conflict between the people. So Ashoka was not liking this conflict. He wanted peace in his empire. There should be peace. Not only this, animal sacrifice was also a very important practice at that time. एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, ऐसे ऐसे रिचुअल्स होते थे, है ना। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थे सोसाइटी में, लाइक स्लेव्स थे, सर्वेंट्स थे, और दीज स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड इन द सोसाइटी. दे वर नॉट ट्रीटेड इन अ वेल मैनर. They were not considered as a human being. Instead, they were considered as an object or property of the owner. तो इनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, जिसके कारण अशोका was not in peace. He was disturbed by seeing all these things. And not only this, Ashoka also was aware that in families, people are quarreling with each other. Father and son, mother and son, mother and father, they are quarreling with each other. Not only this, neighbors are quarreling with each other. Ashoka peace, शांति चाहिए, बिकॉज उसने जो क्वारल होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके कारण कितना कुछ हार्म हो सकता है, वो सब कुछ वो एक्सपीरियंस कर चुके थे, और अब वो चाहते थे कि सोसाइटी में पूरी तरह से पीस हो, ठीक है। तो अशोका का जो धम्मा है वो इसी पर्पस से था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अगर कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के बीच में बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन रिलीजन, तो वो ख़त्म होनी चाहिए, एनिमल्स का सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, देन स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के साथ इल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स आपस में पीसफुली लविंगली रहने चाहिए, देन नेबर्स के साथ आपका क्वारल नहीं होना चाहिए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अशोका ने अपने ऊपर ली, अपने धम्मा के थ्रू। उसने ये समझा कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सोसाइटी में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये पूरी जो सब्जेक्ट है ये मेरे बच्चे हैं, इनको इंस्ट्रक्ट करना है, इनको एक सही रास्ता दिखाना है। और यही पर्पस था कि उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिनको हम कहते हैं धम्मा महामत्ता। दे आर कॉल्ड धम्मा महामत्ता। So Ashoka appointed officials धम्मा महामत्ता, ठीक है। अब ये धम्मा महामत्ता किस लिए अपॉइंट किए गए? ये अपॉइंट किए गए इसलिए ताकि दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड they will teach the people. For that purpose only Ashoka appointed these officials. DHAMMA Dhamma Mahamatta, MAHAMATTA, ठीक है। तो ये धम्मा महामत्ता जो है इसलिए ये अपॉइंट किए गए अशोका की तरफ से, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाके लोगों को पढ़ा सके, लोगों को समझा सके कैसे हमें रहना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों के, उन प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट कर सके, सॉल्व कर सके,
ठीक है। तो धम्मा महामत्ता वर देयर टू टीच पीपल अबाउट धम्मा. What was their function? Their function was to teach people about Dhamma. Teach people about Dhamma. ठीक है। और अशोका ने और भी किया काम, जो कि पहले हम आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अशोका ने अपने जो मैसेजेस थे, जो भी वो अपनी तरफ से लोगों को बताना चाहते थे, वॉट एवर हिज मैसेज वॉज, ऑल द मैसेजेस वर इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. रॉक्स और पिलर्स पे उन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्राइब किया. इंस्क्राइब मतलब वही, जब हम हार्ड सरफेस पे कोई भी चीज़ लिखते हैं तो दिस इज नोन एज इंस्क्रिप्शंस, है ना. और कैसे लिखते हैं? कुछ टूल्स के हेल्प से, जो मेटल के टूल्स के हेल्प से उस पर लिखा जाता है. तो इस तरह के रॉक्स एंड पिलर्स पे उन्होंने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब कराया, है ना. और तो जो मैसेजेस उन्होंने इंस्क्राइब किया, वो क्या हुआ कि जो लिटरेट पीपल थे, दे वर एबल टू रीड द मैसेजेस. वो तो पढ़ सकते हैं, जो प्राकृत लैंग्वेज पढ़ना जानते हैं वो तो पढ़ लेंगे. बट व्हाट अबाउट दोज हु आर इलिटरेट? जो इलिटरेट पीपल हैं उनका क्या होगा? उनके लिए भी अशोका ने किया. क्या किया? अशोका ने ये किया कि जो नहीं पढ़ पाएंगे उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो ऑफिशियल्स, ये जो धम्मा महामत्ता थे, वो उनके लिए उस मैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ के उन्हें समझाएंगे, है ना. तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अशोका के बारे में. और जो मैप हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें कि मौर्यन एम्पायर के प्रिंसिपल सिटीज़ दिखाए गए थे, उसी मैप में, जो कि आपका मैप 5 है, ठीक है, उसी मैप में आप देखोगे कि देयर आर प्लेसेस विच आर डिनोटेड बाय रेड डॉट्स. ब्लैक डॉट्स में तो प्रिंसिपल सिटीज़ हो गए, है ना. जो रेड डॉट्स में दिए गए हैं पूरे के पूरे मैप में, दैट इज दे आर द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज फाउंड. एंड यू कैन सी दीज इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री. ये रेड डॉट आपको दिखेंगे. साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है. हाँ, वेस्ट में थोड़ा सा कम है, बट वेस्ट में भी है, क्योंकि अगर गुजरात में देखें तो वहाँ भी हमको दिखता है. और पाकिस्तान में भी है. आज के समय में जो पोर्शन हमारा पाकिस्तान बन गया, वहाँ पर भी अशोका के इंस्क्रिप्शंस मौजूद है. अफगानिस्तान तक में अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. तो ये सारे जो रेड डॉट से प्लेसेस को डिनोट किया गया है, दे आर डिनोटिंग the places where this inscriptions of Ashokas were found. ठीक है. एंड नाउ जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अशोका के इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान तक में है, तो अशोका वांटेड टू स्प्रेड हिज आइडिया ऑफ धम्मा टू अदर लैंड ऑल्सो. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? ऑल दोज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय अडॉप्टिंग द पाथ ऑफ धम्मा ओनली. एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड टू स्प्रेड दिस आइडिया ऑफ धम्मा, these teachings of धम्मा, so that there should be peace in the whole world. किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हो दुनिया में, हर तरफ शांति हो, पीस हो. और इसीलिए उन्होंने अपने धम्मा को स्प्रेड किया. और बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज थे, लाइक सीरिया है, इजिप्ट है, ग्रीस है, श्रीलंका है, इन सब कंट्रीज में ये जो उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा ताकि वो वहाँ पर धम्मा के बारे में लोगों को बता सके. ठीक है. तो दीज कंट्रीज, द नेम ऑफ दीज कंट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कि कौन कौन सी ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पर कि अशोका ने अपने मैसेंजर्स को भेजा इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज धम्मा. द कंट्रीज आर सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड
श्रीलंका. Okay. Or not only this, Ashoka was a very philanthropic type of person. वो लोगों के लिए बहुत सारे उसने काम किए, इसलिए तो अशोका को एक सबसे ग्रेट रूलर्स में याद किया जाता है. तो उनके अंदर वो बहुत पावरफुल थे. वो चाहते तो कॉन्करिंग, जिस तरह से उन्होंने कलिंगा को जीता, उस तरह से और भी बहुत सारे टेरिटरीज को वो अपने अधिकार में ले सकते थे, बट उन्होंने छोड़ दिया कॉन्करिंग. और उसके बाद वो हर तरफ क्या चीज़ का कौन सा मैसेज दे रहे हैं? धम्मा का मैसेज दे रहे हैं, पीस का मैसेज दे रहे हैं, लोगों के जो नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए वो इतने सारे काम कर रहे हैं. लाइक उन्होंने रोड्स बनवाए ताकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम्स ना हो. ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं रोड्स. इसके अलावा उन्होंने कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना हो. रेस्ट हाउसेस बनवाए जहाँ पर कि लोग रेस्ट कर सके आने जाने में, जहाँ पर भी उन्हें थकान महसूस हो तो दे कैन टेक रेस्ट ऑल्सो. तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ किया. और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उन्होंने अरेंजमेंट किया. अगर कोई जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, उस समय तो इतना सब कुछ नहीं था ना, और स्टेट का काम भी नहीं होता था ये सब. इट डिपेंड्स ऑन द किंग. जैसे आज तो हम लोग देखते हैं ना कि गवर्नमेंट का तो ये फंक्शन ही है. हमने गवर्नमेंट पढ़ा है ना, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें सिविक्स में. तो गवर्नमेंट का तो ये फंक्शन ही है कि वो ये सारे काम करेगा, है ना. लेकिन उस समय में, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब अशोका का रूल है, तो ये हम बीसी में हैं अभी, 200 बीसी के अराउंड की बात कर रहे हैं. तो उस समय में हम लोग इस तरह का इतना सारा वेलफेयर एक्टिविटीज करने वाले राजा बहुत कम होते थे, जो कि रोड्स बनवा रहे हैं, कुएं खुदवा रहे हैं, रेस्ट हाउसेस बनवा रहे हैं, लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं कि उनको अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो उसका पूरा किया जा सके. एंड नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स, क्योंकि ही वॉज अ पर्सन फुल ऑफ काइंडनेस. और एनिमल सैक्रिफाइस को उसने कि वे बिल्कुल ही अगेंस्ट थे. गौतम बुद्धा का भी हमने पढ़ा था ना कि ही आस्क्स पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स ऑल्सो. ह्यूमंस के साथ तो आपको काइंड रहना ही है, एनिमल्स के साथ भी आपको काइंड रहना है. तो इन्होंने एनिमल्स के मेडिकल ट्रीटमेंट का भी इन्होंने अरेंजमेंट किया. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अबाउट अशोका, है ना. ये छोटी छोटी चीज़ों से तो पता चलता है ना कि इंसान के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं. तो ये चीज़ें हमने देखी. अब एक जो मैसेज है अशोका का, उसको हम लोग पढ़ेंगे. ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इस मैसेज को जब हम पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि अशोका ने जो धम्मा का मैसेज दिया, जो धम्मा का आइडिया दिया, एक्चुअली इट वाज नॉट समथिंग विच वाज इम्पॉर्टेंट ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम. अगर देखा जाए तो वो आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज जो सिचुएशंस है, आज जो सर्कमस्टांसेस है, अगर उसमें भी हम देखेंगे तो ये आज भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कैसे है वो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है, तो दिस इज योर लास्ट पेज. ठीक है, चैप्टर का ये आपका लास्ट पेज है, जिसमें कि ये दिया हुआ है बॉक्स में, अशोकास मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स. अशोका ने अपने सब्जेक्ट्स को क्या मैसेज दिया? पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न, और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी. है ना, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं. जैसे पहले तो ये था कि अगर कोई बीमार भी होता है ना, तो उसको तरह तरह के रिचुअल्स करने होते थे. ये नहीं कि उसको डॉक्टर और दवाई होती थी, बट इंस्टेड ऑफ मेडिसिन एंड डॉक्टर व्हाट वाज डन, रिचुअल्स वर डन. है ना. इसी तरह से अगर किसी की यहाँ शादी है तो उसमें भी बहुत सारे रिचुअल्स होते थे. वो तो आज भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना. मैरिज के टाइम में बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं. बच्चे का जब बर्थ होता है तो भी रिचुअल्स बहुत सारे होते थे. आज भी होता है, उतना नहीं होता है, बट आज भी रिचुअल्स होते हैं हमारे यहाँ.
और जैसे उस समय जर्नी पे भी जाते थे तो जर्नी पे जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बिकॉज किसी तरह का एडवांसमेंट नहीं था ना, टेक्नोलॉजी साइंस कुछ भी नहीं डेवलप हुआ था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही सही नहीं था। तो इसलिए जब वो जर्नी पर जाते थे तो भी बहुत एलाबोरेट वो होता था, रिचुअल्स होते थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्यों पीपल जो है वो रिचुअल्स करते थे। इन रिचुअल्स का कोई यूज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू अशोका, इट इज़ रियलिटी। रिचुअल्स जो होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो रिचुअल्स की कोई भी यूटिलिटी नहीं होती है। हम करते हैं बट क्यों करते हैं? कई बार होता है ना, छोटे बच्चे ये क्वेश्चन कर देते हैं जब कोई हमारे घर में पंडित वंडित आते हैं और कुछ करने के लिए कहते हैं कि ऐसे करिए, ऐसे ही क्यों करें? उस क्यों का जवाब बहुत कम मिल पाता है हमें। तो इन रिचुअल्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई रीज़न नहीं होता है, बस हम करते हैं क्योंकि हमें कहा जाता है ना। तो अशोका का क्या कहना है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ अशोका, दैट वी डोंट नीड टू डू ऑल दीज रिचुअल्स, है ना, दे आर नॉट यूजफुल। अगर हम रिचुअल्स करने के अलावा कुछ और करें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ये कुछ और क्या है अकॉर्डिंग टू अशोका, डोंट गो फॉर रिचुअल्स, इंस्टेड you try to be gentle with your slaves and servants. Instead of treating them in a very ill manner, you treat them gently, है ना। रिचुअल्स फॉलो करके हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, हम बहुत पूजा पाठ करेंगे तो हमारे भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गॉड becomes happy when we help those who are in need. God becomes happy when we treat each and everyone in an equal manner. अगर हम स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं और पूजा कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से, तो क्या भगवान हमसे खुश होंगे? गॉड विल नेवर बी हैप्पी विथ अस, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, भगवान की खूब अच्छे से पूजा कर रहे हैं, सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो अपने घर में या आसपास में जो पुअर पीपल हैं, जो स्लेव्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनके साथ हम इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज हाईली इररिलीजियस वर्क, है ना। बहुत इररिलीजियस काम हम कर रहे हैं अगर किसी को इल ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर इकोनॉमिक कंडीशन, है ना। ये नहीं होना चाहिए। तो आप मंत्र जाप मत करिए। what is needed is to behave in a well manner with the slaves and the servants. Okay, and then another thing which is told by Ashoka is respecting one's elders. अपने elders को respect करिए, है ना। You should respect your elder. Treating all creatures with compassion. Compassion क्या होता है? जो हमारे अंदर जो दया की भावना होती है ना, दैट इज नोन एज कंपैशन, COMPASSION. So Ashoka is saying that treat everyone with compassion, all creature, be it animal or human being, सबके साथ आप कंपैशनेट बिहेवियर करिए, अपने एल्डर्स को वो करिए, रिस्पेक्ट दीजिए। ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को गिफ्ट देने की बात भी ये करते हैं, बिकॉज जो ब्राह्मण्स हैं, जो मॉन्क्स जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, तो जैसे हमने देखा था ना, जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉन्क्स थे, नन्स थे, जो अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल जाते या इन सर्च ऑफ नॉलेज। तो ऐसे लोगों को हमें गिफ्ट देने चाहिए, ये अशोका का कहना है ना। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर रिलीजन। ये बहुत बड़ी बात अशोका ने कही है, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, जो ह्यूमन नेचर होता है ना, हम अपनी चीज़ों की बहुत प्रेज करते हैं। जो चीज़ भी हमारा होता है हम दिखाते हैं कि हमारी चीज़ सबसे अच्छी है ना, और दूसरे की चीज़ जो है उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर, बट वी नीड टू चेंज, वी नीड टू मॉडरेट दिस नेचर। हमको इस नेचर को मॉडरेट करने की जरूरत होती है। मॉडरेट करने का मतलब उसमें थोड़ा सा सही करने की जरूरत होती है हमें। अगर हम इस तरह से जैसे कह रहे हैं कि हम अपनी चीज़ को कहेंगे बहुत अच्छी है, दूसरे की चीज़ खराब है, तो क्या होगा? हम कहेंगे हमारी रिलीजन
बहुत अच्छी रिलीजन है, सबसे बढ़िया रिलीजन दुनिया भर में तो हमारा ही रिलीजन है, उनका रिलीजन, आपका रिलीजन बेकार है, उसमें बहुत सारी गंदी गंदी बातें हैं, ये है वो है, वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन से, है ना, लोग कहते हैं। और इसी कारण फिर क्या होता है, लड़ाई होती है। अगर हम किसी दूसरे धर्म वाले को इस तरह से कह दें कि आपका धर्म खराब है, हमारा धर्म अच्छा है, तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी, क्योंकि धर्म जो होता है ना वो हमारे दिल से जुड़ा होता है। धर्म का जो रिश्ता होता है ना वो दिमाग से नहीं होता है, वो सीधे हमारे दिल से जुड़ा होता है। तो जहाँ पर कोई हमारे धर्म को बुरा कहता है ना तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है ना, और फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए अशोका का ये कहना है कि ये काम बिल्कुल बंद कर दीजिए कि अपने धर्म की हम बड़ाई कर रहे हैं और दूसरे के धर्म की हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। So we will continue with this in the next class.